मेरे साथ है मेरे बड़े भाई। जब ये टेलीविजन पर टीवी शोज होस्ट किया करते थे, मैं कहता था काश मैं भी इनकी तरह बनूं। व्हाट अ मैन, सच्चे हैं, अच्छे हैं, ग्रेट एक्टर, रिसीविंग ग्रेट रिव्यूज फॉर कड़क एज वेल। रणवीर शौरी, बड़े भाई प्रणाम। ये मैं झुक रहा हूं आपके सामने। सेट के मेरे छोटे भाई। बट लिसन, आई वांट टू फर्स्ट से, मैंने कड़क नहीं देखी है, बट बहुत अच्छे फीडबैक मिल रहे हैं। यू आर फीलिंग गुड फ्रॉम विद इन, टॉप ऑफ द वर्ल्ड, क्या फीलिंग आ रही है? Yeah, Kadak has been received quite well and see this is वही है कि जहाँ पे अगर आपको इक्वल ग्राउंड इवन ग्राउंड मिलता है for releasing your films, then automatically the merit of the film is acknowledged. But मैं वो कभी-कभी यही सोचता हूँ कि अगर हम लोग अभी भी थिएट्रिकल सिस्टम में होते तो कड़क जैसी फिल्म को शोज ही नहीं मिलते. So that's one thing, but I'm glad that it got released at the correct time on the correct on the correct medium, and it's wonderful to see so many people writing in about Kadak. It's great feeling. आपकी आवाज आज के जमाने में और ज्यादा पहुंच रही है, क्यों लग रहा है आपको ऐसे? I think it's basically because the things that I talk about, people are realizing are true, I guess. I think that's why more people are relating to what I say. आप मुझे बताइए, आप सुशांत सिंह के साथ सोन चिड़िया में थे। इफ आई टेल यू टू वॉक डाउन द मेमोरी लेन विथ हिम, अगर फ्लैशबैक्स आती हैं तो कौन से मोमेंट्स थे सुशांत के साथ जो आप कह रहे थे वाह यार बड़ा अच्छा लगा इस बंदे से मिलकर? फ्लैशबैक्स तो आप नहीं भी कहेंगे तो भी आते हैं. अब आई एम स्टिल नॉट ओवर इट. It was very shocking, and I'm greatly affected by what has happened. And जहाँ तक memories की सवाल है, I have great memories with Sushant. No, not just while making the film, even after we made the film, we used to party together. He's come home a couple of times, and we've had Son Chidiya parties at home, and it's a great bond that we shared. And it's heartbreaking, when you do a film together like Son Chidiya, and it's like like a shared journey, and that through the years we will see how this film grows, and it's very sad to have that journey cut short. I can't watch. I mean, I used to love watching Son Chidiya, and I used to love thinking about it, but all that is changed now. Can't watch Son Chidiya the same way now. भाईजान, आपने ये भी कहा है कि वो एविड रीडर रहे हैं, उनकी थर्स्ट फॉर साइंस वर्ल्ड के लिए बहुत रुचि थी। What are the kind of things you all used to bond over? Was it only films or other things भी थी? More than films, I think he and I bonded over science. He's a science buff. So am I, and he used to read a lot. I remember one of the things which he brought to my notice were fractals and the Mandelbrot set of numbers. So these kind of things, he was not a regular Bollywoodia, as you would say. He was a very well-read guy, and he had some great things going on, even outside of films. He had a virtual reality company going on, and he had great plans. He wanted to send kids to NASA. He was doing a lot of great things, which your regular Hindi film hero would not be doing. So yeah, I have great memories with him. Yeah, one of the greatest memories I have with him is I remember we were shooting Son Chidiya, and so one of the things जो मुझे याद है, जब हम लोग सोन चिड़िया बना रहे थे तो एक एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट हुआ था जिसमें the moon and I think 2 or 3 other planets were aligning like a once in 100 years जैसा ऐसा कोई इवेंट. और हम लोग वहाँ धौलपुर में थे सोन चिड़िया शूट करने के लिए, एंड ही एक्चुअली उन्होंने अपना पूरा जो बड़ा टेलीस्कोप था तामझाम वाला, वो उन्होंने फ्लाई डाउन किया धौलपुर में, गार्डन में लगवाया होटल के. फिर उस रात को जिस रात को वो जो एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट था, सबको बुलाया, गेट टुगेदर किया हम. एंड आई रिमेम्बर मैंने उनके टेलीस्कोप से चांद को देखा, उन्होंने जुपिटर दिखाया, सैटर्न की रिंग्स दिखाई मुझे. दैट्स द ओनली टाइम आई हैव सीन विद माय ओन आई सैटर्न की रिंग्स. So great memories with him. रणवीर, आपने इंटरव्यू के शुरुआत में ही कहा था मुझसे कि यू नो व्हाट, कड़क को इवन ग्राउंड मिला है. कहीं आपको दुख होता है कि आपको इवन ग्राउंड नहीं मिला है आज तक? दुख होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन
उस दुख के साथ साथ ये भी रियलाइजेशन है कि ये सिर्फ मेरे लिए नहीं है, बहुत लोगों के लिए, और ये सिर्फ इस प्रोफेशन में नहीं है, कई प्रोफेशंस में है। बट हर जगह जहाँ इनजस्टिस और ऐसी इनइक्वालिटी हो, वहाँ उतना ही जरूरी होता है, मैं समझता हूँ, आवाज उठाना। चुपचाप उसको सहते रहना ठीक नहीं है, बिकॉज वो कहीं पे वो वैलिडेट करता है उस चीज को, उस सिस्टम का जो चलने का तरीका है। अगर कहीं आपको लगता है कुछ गलत हो रहा है तो आपको आवाज उठाना भी जरूरी होता है, उसको सह लेना ठीक नहीं है। जब आप आवाज उठा रहे थे पहले, जो आप पहले से करते आए हैं, कहीं आपको लोग आके बोलते थे यार रणवीर तुम क्या बोल रहे हो, तुम्हें फिल्में और कम मिलेंगी, जो लोग पावर्स में हैं वो नोटिस करेंगे और शायद आपके खिलाफ हो जाएंगे, ऐसे फीडबैक्स आए हैं आपके पास? हाँ, अक्सर आए हैं। बट मेरा पॉइंट यही होता है कि अगर कोई आपको रैंसम होल्ड कर रहा है तो उस टू गिविंग इन टू दैट इज नॉट द आंसर। और एनीवे मेरी कहानी, मेरे जो रीजंस हैं वो ये नहीं है कि मैं स्पेकुलेट करके बोल रहा हूँ। मैंने आजमाए हैं 15 साल, उसके बाद बोल रहा हूँ। आई हैव सीन दिस आफ्टर 15 years और अप टू 15 years, मोर देन 15 years, एंड उस बिना पर बोल रहा हूँ। मैं हवाई फायर नहीं कर रहा हूँ। मैं देखता हूँ किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन में और एग्जीबिशन में, थिएटर्स में किस तरह से साइड लाइनिंग की जाती है, इग्नोर किया जाता है। मीडिया में किस तरह से ये गेम्स खेलकर साइड लाइन इग्नोर किया जाता है सर्टन लोगों को, जो जो विच हु डोंट बिलोंग टू द क्लिक। और गैंगिज्म, जैसे आई थिंक किसी ने ये यूज की है टर्म, तो जो गैंगिज्म है हमारे बिजनेस में, वो बिल्कुल है। और व्हेन समबडी इज बुलिंग, तब ये नहीं होता कि आप कि आप उसको सह लें। यू हैव टू स्टैंड अप टू दैट। विद्युत जामवाल और कुणाल खेमू ने भी ट्वीट किया था हाल ही में, एक ओटीटी प्लेटफॉर्म ने बहुत सारी फिल्मों को लॉन्च किया था और उनको नहीं बुलाया गया था प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए। आई डोंट नो वेदर यू आर अवेयर ऑफ इट और नॉट, बट आई एम श्योर यू आर। नाउ अ लॉट ऑफ पीपल आर सेइंग दैट दे नीड दैट इवन ग्राउंड। आपको लगता है जिस तरीके से आप बोल रहे हैं और बहुत से लोग ओपनली बोल रहे हैं, उनको इवन ग्राउंड मिल सकता है? यू सी इट हैपनिंग सून? बिल्कुल। वन ऑफ द ग्रेट थिंग्स अबाउट स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स, जिस पे आस हम लोग लगा के बैठे हैं, वो यही है कि दे विल नॉट फॉलो द सेम, दे विल नॉट फॉल इनटू द सेम ट्रैप। जब ऐसा इवेंट होता है, इनफैक्ट वो जो आप फिल्में कह रहे हैं उनमें से जो कुणाल खीमू वाली पिक्चर है उसमें मैं भी हूँ। बट मेरा पॉइंट है, मुझे तो ठीक है नहीं बुलाना चाहिए था, मैं सपोर्टिंग रोल में हूँ फिल्म में, बट कुणाल को क्यों नहीं बुलाया? विद्युत को क्यों नहीं बुलाया? व्हाट इज द रीजन? आप 7 फिल्में कहते हो, 5 फिल्मों के रिप्रेजेंटेशन 2 की है ही नहीं, उसकी जगह को आप किसी और को ले आते हो। किसी और को लाना प्रॉब्लम नहीं है, बट उनको क्यों नहीं लाए? आप कोई 8th पार्टी को ले आए या 9th पार्टी को, 10th पार्टी, जिसको लाना है लाइए, बट कोई एक पैरिटी, एक कोई सिस्टम तो होना चाहिए ना। इट कांट बी यू किसी को आप छोटा नहीं ऐसे दिखा सकते। फॉर व्हाट रीजन? जैसे आपने खुद कहा, ये वर्ड गैंगिज्म, जो शेखर सुमन जी को मैंने भी इंटरव्यू किया था कुछ दिन पहले, उन्होंने भी यही शब्द यूज किया था हाँ, शायद मैंने कुछ। उनसे ही सुना है। और उनका जो पावर्स टू बी है, उनका ये कहना है कि मैं अपने मामा हो, चाचा हो, भाई हो, बहन हो, किसी को भी कास्ट करूं, मेरी फिल्म, मेरा प्रोजेक्ट, मैं किसी को भी करूं, अगर हिट हुआ मेरी कामयाबी, अगर नहीं चली मेरा मेरी कोई फेलियर। डिसएडवांटेज है, हाँ मेरा फेलियर। इस पर क्या कहने हैं आप? वही तो मैंने आपसे कहा, बिल्कुल, ये तो मैं बिल्कुल मानता हूँ, करेक्ट है ये, आप बिल्कुल सही बात है। बट अब उसके साथ साथ आप ये मत करिए ना कि अभी मैं शेखर सुमन जी की, अगर उनकी, अब वो अपनी बात तो नहीं कर रहे थे ना। मैं कह रहा हूँ मेरी कंपनी, मैं जो चाहूँ करूँ, जिसको कास्ट करूँ, मेरा सक्सेस, मेरा फेलियर। पर उसके साथ में जो सिस्टम है कि आप अब एग्जीबिशन में आप शोज नहीं देते छोटी फिल्मों को, शोज ही नहीं मिलते हमारी फिल्म को। जैसे मैंने आपको कड़क का एग्जांपल दिया, अगर कड़क थिएट्रिकल, इस वक्त थिएटर अगर चल रहे होते और उसकी थिएट्रिकल रिलीज हो रही होती तो कड़क वाइप वॉश आउट हो जाती, क्योंकि उसको शोज ही नहीं देते ये लोग। वो कोई बड़े स्टूडियोज और जो बड़े प्रोडक्शन हाउसेज और बड़े स्टार्स की फिल्में को शोज देंगे, छोटी फिल्मों को शोज ही नहीं देंगे। अब कड़क लगी है, इसको मीडिया में स्पेस ही नहीं मिलती। मीडिया में अब भी क्या स्पेस मिली है, कुछ खास नहीं है। मीडिया वाले will continuously write about big production houses and the people they want and the big stars, but they will not write about other actors who have been successfully working 10 years, 15 years, and delivering and have a certain following. Usko tap karke usko बढ़ाने, उससे you have to understand, media is the lifeline for फिल्म मेकर्स एंड एक्टर्स। दिखेगा तो बिकेगा, सिंपल है। और आप जो आप दिखा रहे हो वो आप, बिकॉज यू आर सिटिंग इन द लैप ऑफ बिग प्रोडक्शन हाउसेज, जो लोगों को वो कहते हैं आप उनके बारे में लिखते हैं, जो लोग काम करते हैं आप उनके बारे में नहीं लिखते। सो अगर आप कहते हैं कि मेरी कंपनी, मैं जो चाहूं करूं, तो उसके साथ साथ ये एग्जीबिशन और मीडिया की, एग्जीबिशन आपकी तो नहीं है, मीडिया आपका तो नहीं है।
So I'm saying this system works like this. जैसे मैंने कहा, शेखर सुमन हो या कुछ लोग हो, वो कहते हैं कि कभी कभार द पावर्स टू बी, जो भी हो, वो फोन करते हैं और बोलते हैं अच्छा इसको फिल्म से हटा दो, अच्छा इसको नहीं रखना, हालांकि उनकी फिल्म भी नहीं रहेगी। ऐसा भी आपने सुना है, होता है कि हमारी इंडस्ट्री में? मैंने बिल्कुल सुना है, ऐसा होता है। और वो उसमें होता क्या है कि फॉर एग्जांपल एक बहुत एस्टैब्लिश्ड प्रोडक्शन हाउस है, हिट मेकिंग प्रोडक्शन हाउस है, स्टार मेकिंग प्रोडक्शन हाउस है, तो जो छोटे प्रोडक्शन हाउस हैं या छोटे प्रोड्यूसर्स हैं, वो इस आस में कर देते हैं कि कहीं उनके नेटवर्क से उनको रिलीज मिल जाएगी, उनके नेटवर्क से उनको मीडिया मिल जाएगा। समझ रहे हैं आप? इट्स एवरीबडी फील्स कि अगर मैं ये रिलेशनशिप में आ जाऊं तो मैं निकल जाऊंगा, यू नो, कि मैं अगर इनके साथ एसोसिएट हो गया, ये क्लब के साथ में एसोसिएट हो गया, इस क्लब इस मेंबर के साथ एसोसिएट हो गया, तो मेरी कई प्रॉब्लम्स इजी हो जाएंगी। तो उस आस में वो करते हैं। फिर वो बोले, या फिर वो बोलेंगे कि हम अगली पिक्चर में इसको ले रहे हैं तो तुम इसको ले लो। वो अगला कहेगा बिल्कुल ये तो बड़ी फिल्म, स्टूडियो की फिल्म करने वाला है, ये तो हिट होने वाली है, इसको तो बहुत शोज मिलने वाले हैं, इसको तो बहुत मीडिया अटेंशन मिलने वाली है, मैं इस एक्टर को छोड़ देता हूँ, जो ये बोल रहा है मैं उसी को ले लेता हूँ। आपने ये तक कहा है कि अवार्ड शोज रिग्ड है, कुछ सुपरस्टार्स भी बहुत समय से कहते आए हैं, कुछ सुपरस्टार्स अटेंड भी नहीं करते अवार्ड शोज में। पर आपने लिटरली एक स्टेटमेंट कही है जो मुझे बहुत दिल में लगा था, जो आपने कहा कि यू फील इनविजिबल इन अवार्ड फंक्शंस। बिल्कुल, आप देख लीजिए पिछले 10-15 साल के अवार्ड देख लीजिए, मेरी फिल्मोग्राफी देख लीजिए, आप देखिए मेरा क्या क्या काम इन्होंने इग्नोर किया है, नॉट इवन नॉमिनेशंस। आइडिया हो जाता है ना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, व्हेन यू टॉक टू द ऑडियंस यू गेट अ फीलिंग ऑफ how well the film had done, how well your part had done. And for them, for award functions, I don't exist barely कभी, वो भी बिल्कुल बिल्कुल जब मुंह नहीं छुपा पाते तो मेरी नॉमिनेशन कर देते हैं। तो फिर आप जैसे लोग जो अच्छे कलाकार है, जो जिनका काम बात करता है, आपको एक्नॉलेजमेंट ऑफ गुड वर्क फिर कैसे मिलता है? आर यू हैप्पी? ऑडियंस एवरी पर्सन हु कम्स शेक्स योर हैंड्स एंड सेज मैंने आपकी देखी, आप बहुत अच्छे एक्टर हैं, मैं आपकी फिल्म हमेशा देखता हूँ, कोई ट्विटर पे लिख के भेजता है, कोई फेसबुक पे, कोई इंस्टाग्राम पे लिख के भेजते हैं, दिस इज व्हाट कीप्स यू गोइंग। जब आप ऑडियंस में रहते हो और कोई अनडिजर्विंग एक्टर को मिलता है, डज इट हिट यू लाइक अ बुलेट इन योर हार्ट व्हेन नॉट यू सी एनी दैट मोर, हैपन? पहले लगता था, अब तो आदत हो गई, अब ना हो तो अब मेरे को हिट मी इन द हार्ट। अब अगर सडनली आई सी के मेरिट के बेस पे दे रहे हैं तो दिल सडनली मुझे दिल का दौरा ना पड़ जाए कहीं। रणवीर भाई, कहीं आपको थॉट्स आए थे कि यार मैं इंडियन फिल्म इंडस्ट्री छोड़ दूं, क्योंकि 15 साल से आप बहुत काम बार, कर रहे हैं? बहुत बार आया है। बहुत बार, बहुत बार, बहुत बार, बहुत बार। एंड देन व्हाट और कीप्स कभी यू गोइंग? आई थिंक व्हाट कीप्स यू गोइंग इज दिस इज द वर्क दैट आई लव द मोस्ट। फिर आदमी क्या, जब फिर पैसे के लिए नहीं काम मिलता तो आप बिना पैसे के भी काम करते हो फॉर द वर्क इटसेल्फ। थिएटर कर लेना, बिल्कुल जीरो बजट फिल्म कर लेना। सो आई थिंक व्हाट कीप्स यू गोइंग इज द लव ऑफ द पैशन फॉर द वर्क। आपने डंके की चोट पर यह कहा है कि गेट कीपर्स ऑफ बॉलीवुड जो प्रिविलेज्ड है, उनको इस वक्त अकाउंटेबिलिटी लेना चाहिए। किन किन कारणों की वजह से और कैसे लेना चाहिए आपके अनुसार? नहीं, आई थिंक जहां तक ये है कि फॉर एग्जांपल आप किसी एक्टर को कहते हो कि ठीक है हम आपको ले रहे हैं, आप अभी दूसरी जगह काम मत लीजिए, यू नो, कोई ऐसा आपने कॉन्ट्रैक्ट या कुछ ऐसा किया है, और उसके 1 साल बाद आप बोलते हैं नहीं ये फिल्म नहीं हुई तो अब आप जाइए। इसकी आई एम सेइंग और आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है दैट गिव्स यू नो रिस्पाइट फॉर दिस, उसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि अगर जो प्रोड्यूसर पार्टी है वो इफ इट डजंट मीट व्हाट दे हैव कमिटेड देन दे हैव टू डू सर्टेन थिंग्स, वो है ही नहीं, बिकॉज हमारे यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट्स ऑलवेज यू नो वन साइडेड। हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं दे आर नेवर फेयर, दे आर ऑलवेज वन साइडेड। सो आई एम सेइंग उस ऐसा अगर होता है तो आई मीन वेयर इज द अकाउंटेबिलिटी? आपके पास आप इतनी पावर वील्ड कर रहे हो, यू नो। एंड ऑल्सो मैंने ये भी साथ साथ कहा है, इसके साथ कहा है सिट के कि हाफ द प्रॉब्लम इज द मीडिया, क्योंकि ये लोग आई मीन द क्लब या द गैंग या कबाल जो भी इसको कहना है, whatever they are doing, they are well within their right to do it कि ठीक है मेरी कंपनी है, मैं जो चाहूँ करूँ, इंस्पाइट। हालांकि वो उसके खिलाफ भी लॉज हैं जो एंटी ट्रस्ट लॉज वगैरह हैं, वेयर यू नो वेयर यू आर विल्डिंग ब्लाइंड अमाउंट ऑफ पावर इन अ सिस्टम। कहीं पे जाके there has to be some kind of you know balance and checks and balances to that.
But media are the biggest, media are the bigger villains, because आपका तो काम है फेयर होना. आप फोर्थ स्टेट हैं, आपकी रिपोर्टेज है जो आप जो टाइम देते हैं, that can't be sitting in the lap of certain पावरफुल लॉबीज, एंड बाकी जो लोग हैं वो उनको आप इग्नोर करते हो, साइडलाइन करते हो. सो फॉर मी हाफ द प्रॉब्लम इज मीडिया. मैं किसी के नाम लेके कोई फायदा नहीं है, बिकॉज माय फाइट इज विद द सिस्टम. आई डोंट वांट टू पिक पर्सनल फाइट्स विद एनीवन. ठीक है, एवरीबॉडी डज व्हाट दे थिंक इज बेस्ट और व्हाट दे थिंक इज राइट, बट एंड इन अ ब्रॉडर पिक्चर अगर मुझे वो ठीक नहीं लगता तो मैं आवाज उठाता हूँ. बट इट्स अबाउट द सिस्टम, इट्स नॉट अबाउट स्पेसिफिक पीपल. पर मीडिया कहती है वो वही बेचती है जो लोग खरीदते हैं या जो लोग चाहते हैं देखने के लिए. लूजर आर्गुमेंट. दिस इज अ लूजर आर्गुमेंट सिट के. ये कहना कि नहीं डिमांड है, कैन दे प्रूव दिस कि कोई तैमूर की फोटोज की डिमांड्स थी कि दे लॉट ऑफ पीपल वर राइटिंग इनटू देम? ऐसी लेटर्स हैं, वैलिड जो वेरीफाइबल लेटर्स हैं कि हम तैमूर की फोटो देखना चाहते हैं? दिस ऑल बुलशिट दैट दे गिव टू कवर अप देयर, अपने कुकर्म को कवर अप करने के लिए ये सब बहाने बनाते हैं. जैसे कि जो कबाल या जो विद पावर्स दैट बी, वो ये बहाने बनाते हैं कि मेरी कंपनी जो मैं चाहूँ करूँ, या जो एग्जीबिशन वाले ये बहाने बनाते हैं कि हम तो जो हमारा प्रॉफिट जिसमें होगा हम तो वही करेंगे. ये उसी तरह मीडिया वाले ये बहाना बनाते हैं. दिस इज ऑल क्रैप. पीपल आर रीडिंग इट बिकॉज यू आर पब्लिशिंग इट, नॉट यू आर नॉट पब्लिशिंग इट बिकॉज पीपल वांट टू रीड इट. आपने ये कहा है कि 15 साल, जो आप अभी मुझसे कह रहे थे कि 15 साल आपने बहुत देखा हुआ है, एक कॉन्ट्रैक्ट का एग्जांपल दिया. इज इट पॉसिबल फॉर यू टू टेल अस? Of course, I can give you a couple of examples, but it's not like I said. It's सिर्फ मेरी बात नहीं हो रही है, ये सिस्टम की बात हो रही है. मेरे एग्जांपल्स मैं आपको मोटे मोटे दे सकता हूँ. जो एक आप बहुत बड़ी हस्ती हैं जो फेस ऑफ बॉलीवुड कह लीजिए, वो मैंने एक मल्टी स्टारर फिल्म की थी, उसके बारे में ट्वीट करते हैं, लेकिन उसमें सबके नाम होते हैं लेकिन मेरा नाम नहीं होता. सो दिस इज वन एग्जांपल. मैंने एक बड़ी पिक्चर की थी एक बड़े स्टूडियो के साथ, उसमें मेरे काम की भी एवरीबॉडी लाइक माय वर्क आल्सो, लेकिन उसका जब सीक्वल बना मेरा रोल और छोटा हो गया, मेरे पैसे और कम हो गए. जब मैंने ये बात उठाई तो मुझे पिक्चर से निकाल दिया गया, मेरा रोल ही काट दिया गया. सो आई एम सेइंग ये तो जो है जो मैं आपको क्लियरली बता सकता हूँ. अब ये अगर दिस इज टिप ऑफ द आइसबर्ग, अगर दो ऐसे हैं जो मैं आपको बता सकता हूँ, तो कम से कम 2000 ऐसे होंगे जो मुझे पता नहीं है, वो बिहाइंड द सीन्स ही हो गए. सो ऐसे, एंड आई लाइक अगेन आई एम सेइंग, ये मैं अकेला नहीं कहता हूँ, बहुत लोग कहते हैं कि ऐसा होता है, एंड इट्स ट्रू होता है. आपने फाइनली कहा कि जब सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के सदस्यों ने एक मैसेज डाला ट्विटर पर, आपने बोला ये सब कॉन्स्पिरेसी थियरीज जो है सुशांत सिंह राजपूत के बारे में शुड बी पुट टू रेस्ट. डू यू थिंक इट शुड बी पुट टू रेस्ट और डू यू थिंक इट शुड बी इन्वेस्टिगेटेड फर्दर? देखिए, मैंने इसलिए वो लिखा था बिकॉज किसी ने मुझे पहले पोस्ट एक भेजा था कि सुशांत के इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स चेंज हो रहे हैं, फॉलोइंग चेंज हो रही है, नंबर्स आर चेंजिंग. और उसके पहले मैंने एक पोस्ट किया था जो मैंने बाद में डिलीट कर दिया था. वो था कि इफ दिस इज ट्रू, और मैंने मुंबई पुलिस को टैग किया था, प्लीज दिस शुड बी इन्वेस्टिगेटेड बिकॉज इट्स वेरी क्रीपी. ही इज जस्ट पास्ड अवे, हाउ कैन ही नाउ बी एडिंग हु ही इज फॉलोइंग? ऐसा नहीं हो सकता ना. देन द फैमिली रिलीज द स्टेटमेंट मैंने पढ़ा, जिसमें उन्होंने लिखा कि हम लोग जो उनके जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उनको भी वी आर गोइंग टू create like preserve them or something like that. फिर मैंने पुराना ट्वीट डिलीट करके ये कहा था कि that I hope this brings some peace and quiet, this tragedy to the जो क्या है जो grief and anger stricken fans. तो उससे मेरा कहने का यही मतलब है कि प्लीज जो इन्वेस्टिगेशन करनी है करिए, बट स्टॉप सेंडिंग मी दीज कॉन्स्पिरेसी थियरीज, एंड सेंडिंग मी फोटोज. यार दे सेंड मी फोटोज यार, मतलब कुछ तो शर्म करो यार. दे सेंड यू फोटोज ऑफ I don't even want to say, but there is no sensitivity. आपको मैंने तो कभी ये नहीं कहा कि इन्वेस्टिगेशन नहीं होनी चाहिए, इंक्वायरी जिसको कंप्लीटली सबकी सेटिस्फैक्शन तक इंक्वायरी करिए, बट लेट मी ग्रीव इन पीस यार. उसमें इन्वेस्टिगेशन मैंने तो नहीं करनी है ना उठ के, ना ही मैंने करनी है ना ही आपने करनी है. तो आप क्यों कॉन्स्पिरेसी थियरीज मुझे बना के लिस्ट बना के भेज रहे हो? ये इसका जवाब दो, इसका जवाब दो, इसका जवाब दो, ये फोटो देखो, इस पे ये निशान देखो. कम ऑन यार, प्लीज बी सिविल अबाउट इट. There is a system there which which people will the authorities have to follow, and they will follow. That is my point. Okay? At least grieve in peace and quiet. Let the police do their job. और उन पे आपको कुछ बोलना है तो उनको बोलिए, बिल्कुल बोलिए. आप to all those people जो इस वक्त अपने आप को आउटसाइडर मानते हैं, जो कहते हैं यार काश एक दिन मैं भी
बहुत जाना जाऊं अपने काम के लिए, मुझे भी चांसेस मिलने चाहिए। बहुत से लोग छोटे शहर से आते हैं और कहते हैं यार इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में मैं नाम कमाऊंगा, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल आइए और अब नाम कमाइए, मेहनत करिए, बट यही है कि कीप योर जो एस्पिरेशंस एंड ड्रीम्स रियल, क्योंकि हर सिस्टम की तरह इस ये भी सिस्टम परफेक्ट नहीं है। जरूरी नहीं है कि अगर आपके पास बिल्कुल ही टैलेंट भी हो, लक भी हो, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रॉब्लम्स फेस यहाँ पे प्रॉब्लम्स तो रहेंगी।